ریڈیو پاکستان بلبل پاکستان نیرہ نور کے حوالے سے تعزیتی پروگرام پیش خدمت ہے۔ تحریر منظور کامران، راوی و پروڈیوسر اعتصام الحق، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، اے جذبائے دل گر میں چاہوں۔ منزل کیا تھی کسے معلوم، بس وہی جانتا تھا جس کی قدرت میں کائنات کی ہر شے ہے۔ لیکن اس ذات نے اختیار بھی دیا کہ کیسے جذبوں کو آواز کے ذریعے دلوں میں جگایا جائے۔ بلبل پاکستان خاموش ہو گئیں، وہ جو اس چمن کے ہر صوبے میں ملی جذبوں کی ترجمان آواز تھی، وہ اب اپنے شجر سے اڑ کر دائمی سفر کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ جو اس میں بامسمہ تھی، وہ نیرہ اپنی روشنی تو دنیا موسیقی میں چھوڑ گئیں، لیکن خود ہم سے جدا ہو گئیں۔ کبھی ہم خوبصورت تھے، کبھی ہم خوبصورت تھے۔ ایک آواز جس نے برسوں سننے والوں کے دلوں پر راج کیا، جسے بلبل پاکستان کہا گیا، جس کے گلے سے سادگی اور معصومیت میں گندھے سر ہمیشہ دنیائے تال و سم میں خوبصورت یاد بن کر مہکتے اور گنگناتے رہیں گے۔ گزشتہ روز خبر ملی کہ ہوا میں اپنے احساس کی گرہ لگانے والی پاکستان کی عظیم فنکارہ نیرہ نور اس جہان فانی سے چلی گئیں، مگر نیرہ نور کی آواز اور ان کا انداز فضاؤں اور سماعتوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ نیرہ جی ریڈیو، فلم، ٹیلی ویژن اور اسٹیج ہر جگہ اپنے فن کا اپنے مخصوص انداز میں اظہار کرتی رہیں، اور ایسا اظہار جو سیدھا دل کے تاروں کو چھو جاتا ہے۔ مضراب سے ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، خوشی کا گیت ہو تو غنچے اور کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، وطن سے محبت کا اظہار ہو تو جذبات صرف حب الوطنی کا پیغام دیتے ہیں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ نیرہ نور 1950 کی دہائی میں آسام میں پیدا ہوئیں۔ ان کا خاندان پیشہ ورانہ طور پر تاجر تھا۔ نیرہ نور کے والد مسلم لیگ کے ایک فعال رکن تھے۔ یہ خاندان 1958 میں ہجرت کر کے پاکستان پہنچا۔ نیرہ نور کا خاندان نہ تو فن موسیقی سے وابستہ تھا اور نہ ہی خود انہوں نے موسیقی کے حوالے سے کوئی رسمی تعلیم حاصل کی، لیکن یہ خداداد صلاحیت ہی تھی جس کی بنا پر اس گلوکارہ نے وطن عزیز پاکستان کے موسیقی کے بڑے ناموں کے ساتھ نہ صرف دو گانے گائے بلکہ ان میں اپنا ایک الگ اور منفرد مقام بھی پیدا کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں منعقدہ ایک مقابلہ موسیقی سے ریڈیو پاکستان لاہور پہنچنے والی اس آواز نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور اسٹوڈیوز سے مرزا غالب، مومن خان مومن اور کلام اقبال ریکارڈ کروا کر ان اساتذہ کے الفاظ کو سروں کا سچا رچاؤ دیا۔ بہزاد لکھنوی کی یہ غزل ریڈیو سے ان کی پہچان بنی۔ اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، اے جذبائے دل گر میں چاہوں۔ ان کی شہرت انہیں 1971 میں پاکستان ٹیلی ویژن لے آئی، جہاں ایک اور منفرد غزل ان کی منتظر تھی۔ چلے آؤ محبت کا تقاضا ہے، غمیں دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا
नैयरा जी का ये सफर फिल्म तक पहुंचा और फिर कई ऐसे गीत फिल्मी शायकीन समेत मौसीकी के हर सामे तक पहुंचे जो मयार की सनत पा गए। बोल री गुड़िया बोल जरा, हो जरा बोल री गुड़िया बोल। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। जले तो जलाओ गोरी, पीत का हलाओ गोरी, अभी ना बुझाओ गोरी। नैयरा नूर ने पाकिस्तान के बड़े मौसीकारों के साथ मारकतुल आरा काम किया, जिनमें नुमाया नाम एम अशरफ, कमाल अहमद, निसार बज़मी और अरशद महमूद शामिल हैं। नैयरा नूर ने अपने करियर में लातादाद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत, गज़लियात, सलाम व नात और ख़ास तौर पर फैज़ अहमद फैज़ के अलामती और मज़ाहिमती कलाम में अपनी आवाज़ से जो तासुर पैदा किया वो किसी तहरीक से कम नहीं। आज बाज़ार में पाग दो ना चलो। फनकार कभी नहीं मरता और हमेशा अपने आने वालों के लिए नए पहलू और नए जाविये विरासत में छोड़ता हुआ हर दम ताज़ा दम रहता है। नैयरा जी के जाने का दुख मौसीकी से मोहब्बत करने वाले तमाम अफराद ने महसूस किया और नैयरा जी के चले जाने पर अपनी वाबस्तगी और एहसासात का बड़े दुख से इजहार किया। तसव्वुर खानम ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, नहीं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो बड़ा अफसोस लगा, इतनी अच्छी आर्टिस्ट, इतनी अच्छी आवाज, और लेडी भी बहुत अच्छी थी, इज्जत करने वाली, बड़ों की, छोटों को प्यार करना, ये वो बहुत अच्छी। एक गाना मेरा ख्याल है मैंने भी उनके साथ ड्यूट गाया था शुरू में, तो बहुत अच्छी उनकी तबीयत थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और बहुत अच्छी आवाज। हर किसी ने जाना है अपने अपने टाइम पे जी, किसी ने इधर नहीं रहना। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके घर वालों को हिम्मत दे, सब्र दे परवरदिगार, यही है मेरी दुआ। वतन की मिट्टी को अजीम तर बनाने वाली बर्रे सगीर की अजीम गुलकारा मौसीकी का न मिटने और न मरने वाला बाब है। अरशद महमूद कंपोजर, जिन्होंने नैयरा जी के साथ बहुत से गीतों और गज़लों की बंदिशें तरतीब दी, उनके यूं चले जाने पर अपनी वाबस्तगी का इजहार इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, नैयरा ने वैसे तो बहुत अरसे से गाना छोड़ा हुआ था, वो गा नहीं रही थी, लेकिन जाहिर है कि हमारी दोस्ती क्योंकि बहुत पुरानी है, सन 67 से या इससे भी पहले से शायद हम एक दूसरे को जानते हैं, और जो हवाला जानने का था वो मौसीकी ही थी। तो हमने बहुत अपने जब स्कूल के कॉलेज डेज थे उसमें बहुत इस तरह महफिलों में, कुछ हमारे और चंद दोस्त थे जिनके साथ मिलके हम जरूर कोई ना कोई म्यूजिक परफॉर्मेंस जो है रखा करते थे अपने ही घरों में। तो फिर ये कि सन 72 में मुझे पहली दफा प्रोग्राम मिला टेलीविजन पे, तो उसमें मैं बहुत फख्र से ये कह सकता हूँ कि नैयरा और फारूक कैसर, जिनको सारा पाकिस्तान जो है जानता है, अंकल सरगम जो थे हमारे, वो पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, तो हम तीनों इकट्ठे एक ही प्रोग्राम से हमने अपनी इस फील्ड में सफर शुरू किया और बहुत अच्छा साथ रहा, बहुत दोस्ती थी। फैमिलीज, यानी नैयरा के 2 बेटे हैं, वो मुझे मामू कहते हैं, और इस तरीके से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं उनका हकीकी मामू हूँ, और बहुत क्लोजनेस थी। मेरी बच्चियां जो हैं और बेटा, वो नैयरा को आंटी कहते हैं, और बड़ी मोहब्बत से, मतलब ये ताल्लुक जो है बहुत गहरा, एक बिल्कुल ही जिस तरह फैमिली का ताल्लुक होता है वो है। ये तो हमारा ताल्लुक है, लेकिन एक बेमिसाल सिंगर थी, इसमें कोई शक नहीं है। और किसी भी मौसीकी के चाहे कैसी भी बुनत हो शक्ल की, जो भी शक्ल हम बना के देते थे, वो इस खुशउस्लूबी से, इस आसानी से और इस महारत से गा देती थी कि मतलब हम शशदर रह जाते थे कई दफा। और बाकमाल फनकारा थी और बड़ी ख्वाहिश थी, मुख्तलिफ सब कंपोजर चाहते थे कि वो उनके लिए गाएं, लेकिन वो जरा थोड़ा कम गाती थी, लेकिन जब भी गाती थी बहुत ही उम्दा
اور ابھی بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا ان کی یاد میں، وہ میرے ساتھ بڑا تھا، اور ہزاروں لوگوں نے تعزیت بھی کی، اور جو ان کے فن ہے اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں، ان کے سارے پہلو جو ہے لوگوں نے کہے، ہزاروں کی تعداد میں وہ چیز یہ یعنی سامنے آئی لوگوں نے بہت، اور جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ بے حد مقبول تھی، اور کبھی بھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں کوئی ہٹ گانا گاؤں، بس وہ اچھی شاعری کو پسند کرتی تھی، اور بہت ہی محنت سے، بہت ہی، یعنی میں تو یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی 12 نے کی دھن بنائی ہے تو، اور لوگوں نے اس کو 100 روپیہ سمجھا ہے، تو وہ باقی جو ہے ویلیو وہ ساری نیرا کی گائکی میں ایڈ ہوتی تھی، یعنی عام چیز بھی جو ہے وہ اس کو وہ بڑی کر دیتی تھی اپنے گانے سے۔ معروف غزل گائک استاد غلام عباس نے نیرہ نور کی وفات پر کہا کہ نیرہ نور جو مقام اپنی گائکی کے حوالے سے رکھتی تھیں اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا دن بہت ہی سوگوار دن ہے، ہمارے ملک کی مقبول ترین آواز نیرہ نور اب ہم میں نہیں ہے۔ اس کا صدمہ اتنا ہے کہ الفاظ نہیں مل رہے کہ وفات کو کیا کہا جائے، کہ یہ خلا کبھی پورا نہیں ہو سکتا یا ایسی آواز کبھی نہیں آئے گی۔ سچ یہی ہے کہ نیرہ نور جو مقام رکھتی تھی اپنی آواز کے خوشی سے، اپنی گائکی کے حوالے سے، اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فن موسیقی میں ایک درخشاں ستارہ تھا نیرہ نور کی شکل میں، آج وہ گزر گیا، رضا الہی ہے۔ بہت افسوس ہوا ہے، بڑا دلی صدمہ ہوا ہے تمام ان کے فینس کو اور ان کے فیملی کو، ان کے خاندان کو مالک صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سابق جی ایم پاکستان ٹیلی ویژن منظور قریشی نے کہا کہ انہوں نے اپنی گائکی سے موسیقی کو ایک نئی روح بخشی۔ نیرہ نور صاحبہ کے انتقال کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ ہماری ایک ٹرینڈ سیٹر گلوکارہ تھیں جنہوں نے بڑی خوبی سے گیت غزل گائے، اور ٹیلی ویژن کے مختلف پروگراموں میں جو انہوں نے روح بخشی، جان ڈالی، وہ ایک عرصے تک بلائی نہیں جا سکتی۔ اللہ انہیں مغفرت کرے، ہماری یہی دعا ہے۔ معروف لوک فنکارہ تاج مستانی نے کہا کہ جو خلا پیدا ہوا وہ پر ہونا مشکل ہے۔ دکھ کی بات ہے، ہمارے جو بھی جو ہے نا مانے ہوئے آرٹسٹ جن کو ہم لیجنڈ کہہ سکتے ہیں نا، تو وہ ہمیں چھوڑ کے جب جا رہے ہیں، ایک دن جانا تو ہے لوٹ کے اللہ کی طرف، لیکن ظاہر سی بات ہے جب جاتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے ان کا، کیونکہ جو جس نے اپنا لوہا منوایا ہے ان کی وہ جگہ بھرنا وہ تو بڑی جو ہے نا مشکل ہے۔ اسی لیے جو ہے نا مجھے بڑی جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں سے جانا ہے سب کو، لیکن اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، دعائیں دے سکتے ہیں۔ باقی ظاہر سی بات ہے ہمیں دکھ تو ہوتا ہے جب ہمارے اتنے اچھے جو ہے نا گلوکار جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو ابھی ویسے ہی بہت سندھ کے جو ہے نا جو بھی شخصیت سے ہیں، میوزیشنز میں ہوں چاہے گلوکاروں میں ہوں، کافی وہ جو ہے پہلے ہی نقصان ہوا ہے، تو اسی لیے مجھے تھوڑا اس کا زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ اچھا ان کا جو ہے نا ایک تو ان کی وائس بڑی اچھی تھی، اور وہ نیچر آف بڑی اچھی تھی، ذرا دھیمی جو ہے نا ان کی جیسے آواز تھی، وہ ان کی نیچر بھی ویسی تھی نا۔ تو پی ٹی وی پہ جو ہے نا وہ ہوتی تھی ملاقات، وہ تو تھا بھی پی ٹی وی کا زمانہ،
तो ये सारे जो पुराने गुलकार हैं इनको जो है ना जो भी इज्जत और नाम मिला है तो वो पीटीवी और रेडियो की जो है ना स्टेज से मिला है, उसी प्लेटफॉर्म से। जैसे हमें मिला तो हमें भी वहां से ही मिला है, रेडियो और पीटीवी के। तो जाहिर है ये जो बड़ी जो है ना बड़ा नुकसान है हमारा, और अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। म्यूजिक कंपोजर शाहिद हमीद ने कहा कि उन्होंने अपनी आवाज की इनफरादियत को ही अपनी पहचान बनाया। नैयरा नूर हमारी मौसीकी में एक दरख्शां सितारा थी। आमतौर पर देखा गया है कि नाक से निकलने वाली आवाज़ को कमज़ोरी समझा जाता है, मगर इन्होंने इसे खूबी के तौर पर इस्तेमाल किया। इनकी आवाज़ हर किस्म के गाने, मसलन गज़ल, फिल्मी गीत, मिली नगमे के लिए इंतहाई मौजूद थी। काश ये 10 साल पहले गाना न छोड़ती तो हमारी नस्ल को मज़ीद कई खूबसूरत गाने सुनने को मिलते। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बरसगीर में मौसीकी का एक बड़ा नाम उस्ताद ताफू खान ने नैयरा नूर के इंतकाल पर अपने तासुरात का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। इंतकाल का यह है कि जो एक ओरिजिनल आवाज थी ना वो भी दुनिया से चली गई। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक पहली सिंगर जिसकी ओरिजिनल आवाज उर्दू फिल्मों के लिए बड़ी मखसूस थी, बड़ी खूबसूरत आवाज थी। फिर रोबिन गोल्ड साहब ने इनसे बड़े गाने लिए, अहमद साहब ने इनसे बड़े गाने लिए। मैं एज ए म्यूजिशियन इनके साथ बहुत काम किया, मैंने बहुत काम किया। वो गाने में उसका आवाज ऐसा था, खूबसूरत था। दरअसल ये ओरिजिनल आवाज थी, किसी की कॉपी आवाज नहीं थी। ये जो उनका जो स्टाइल था वो कोई पूर्ण नहीं कर सकता। उनका जो अपना स्टाइल था उर्दू फिल्मों का, बहुत खूबसूरत स्टाइल था। बोलो ना मेरा साया तुम्हारे साथ होगा, ये था एमएसआर का गाना। के हुसैन साहब डायरेक्टर थे, एमएसआर डायरेक्टर थे, और मैं एक प्रोडक्शन काम करता था। बहुत खुश मिजाज लड़की थी, बहुत खुश मिजाज। नैयरा नूर के फर्जंद नादे अली ने अपनी वालिदा से अपने ताल्लुक के हवाले से अपनी याददाश्तें कुछ इस तरह से पेश की। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक औलाद या बेटा होने का ताल्लुक है उनकी नमाज जनाजा पे जब मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ आए, और मुझे बड़ी खुशी है कि हर बंदे ने ये एक ही चीज बोली। उन्होंने ये कहा कि जी अम्मी का सुन के अम्मी की जो ये रुखसत है उस पे हमें बड़ा अफसोस हुआ। किसी ने ये नहीं कहा, आंटी नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, हर एक ने अम्मी कहा, और वो एक इतना बड़ा एजाज है। मैं तमाम सामीन के लिए शायद ये एक बड़ी, मैं हैरत की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उनकी एक रोशन दिली और उनकी जो एक खूबसूरती थी वो ऐसा था सिलसिला उनका कि हमारे यहाँ जो भी आया वो हमेशा कुछ ना कुछ सीख के गया। ये एक बड़े खूबसूरत, एक बड़े नरम, बड़े मुलायम और बड़े हसीन दिल की एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा किसी ना किसी को उसके मिजाज, उसकी शख्सियत, उसकी बनावट के हिसाब से कुछ ऐसा दे दे कि उसकी जो नामुकम्मल सी एक जिंदगी की तस्वीर है उसमें कहीं वो एक हिस्सा जो है वो तस्वीर को मुकम्मल करने में मददगार बने। और मेरी माँ हमेशा मुझे ये कहती थी कि हमेशा वो करो कि जो तुम्हारा दिल तुम्हें कहे, करना वही है जिसमें सदाकत नजर आए, जिसमें ये एहसास हो कि चाहे छोटा है, लोगों की नजरों में हकीर है, लेकिन अगर उसकी हैसियत, उसकी औकात तुम्हारी नजर में बहुत ज्यादा है तो उसको जरूर करना। इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल ये कि मैं कराची में एक वक्त में अपने चंद दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में एक वेटर की नौकरी कर रहा था, और उसमें बहुत लोगों ने आके कहा कि यार क्या हो गया, किसकी औलाद और वेटर की नाम। तो हम तो जवान थे। मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है कि मैंने अपनी वालदा को वहां सर्व किया एज अ वेटर, और मेरी वालदा ने खड़े होकर मेरा माथा चूमा है। मैं तमाम लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि जो एक वैक्यूम उनकी एब्सेंस से पैदा हुआ है, उससे ज्यादा बड़ी सेलिब्रेशन ये है कि वो तमाम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ खुशी का बाइस बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँ कि अम्मी का किसी के साथ ऐसा रिश्ता था कि जहाँ कोई खराबी थी, नहीं, ऐसा सिलसिला मैंने किसी के साथ नहीं देखा, किसी के साथ नहीं देखा। और ये बहुत बड़ी नेमत है, तमाम लोगों को खुशियां मिली। दूसरा ये है कि एक भरपूर खूबसूरत जिंदगी गुजार के वो वापस घर गई हैं। हम सब
अपने अपने काम करके जब घर की तरफ रुख करते हैं तो एक खुशी होती है कि हम घर जा रहे हैं। और जब आपको ये पता हो कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और आपने अपने तमाम काम बहुत अच्छे किए हैं, तो घर जाने में खुशी होती है। उनकी जिंदगी भी भरपूर थी, उनकी जिंदगी में हुस्न था, उनकी जिंदगी में शफकत थी, उनकी जिंदगी में खुदा का वजूद और उसके हुस्न की और उसकी रहमतों का हर वक्त एक अनगिनत सिलसिला रहता था किस्सों के हवाले से और अल्फाज के हवाले से। वो घर गई हैं। और तीसरी बहुत बड़ी बात जो हकीकतन आंखों की देखी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने उनको तकलीफ और मोहताजी से आजाद किया, इंसानी मोहताजी से आजाद किया। मेरे लिए उनका यहाँ ना होना कम हैसियत रखता है। मेरे लिए उनका वहां होना जहां मुझे पता है कि वो बहुत खुश हैं इस वक्त, वो मेरे लिए मैटर करता है। हाँ, याद जरूर आएंगी। उनका एक फिजिकल फॉर्म, उनका वजूद बिल्कुल हर बंदा मिस करेगा। ख्वाहिशात को परसू करने में इंसान कभी चैन में नहीं रहता। ये एक ऐसा सबक है जो कि उन्होंने हमें सिखाया। ऐसा नहीं है कि हमारा जी नहीं करता, बहुत सारी चीजों को देख के बड़ी खास तौर पे जवानी में उन दिनों में जब आप अपने साथियों को देखते थे कि वो अपनी तर्ज जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते थे, आसानी से एक्सपीरियंस करते थे जो हम नहीं कर पाते थे, तो इसका जिक्र हम जरूर उनसे करते थे। तो उन्होंने हमें ये कहा है कि करने को तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या इस चीज का असर, इसकी खुशी, इसकी जो इससे जो इत्मीनान मिलना है वो क्या सारी जिंदगी उसी लेवल पे कायम रहेगा? अगर उसमें कमी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जरा देखो कि इसके ऊपर कितनी मेहनत करनी। इसीलिए हमारे बड़ों ने, मेरी वालदा ने एक चीज का बड़ा अच्छा सबक दिया, खुदा करे कि हम उसका जर्रा भी हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि मतलब अगर पीछे ही लगना है किसी चीज के तो उस चीज के पीछे लगो कि जिसमें कमी ना है। जो मेरी वालदा का अपना एक सिलसिला था जिसमें वो अपनी जात की दरियाफ्त और अपने तमाम जो उनका एक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस था, उसमें उन्होंने यही हमेशा कहा कि पीछे उसके लगना है जिसमें कमी ना है, और खुदा की जात के अलावा कोई ऐसी चीज, उसकी जात के अलावा कोई भी ऐसी चीज है जो फॉरएवर एग्जिस्ट करती है। बस मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ सर, एक दरवाजा है जहाँ से सब कुछ होना है। और मेरी माँ ने हमेशा ये कहा कि और कहीं नहीं जाना है, और किसी इंसान के सामने नाउजुबिल्लाह कभी अपनी चादर नहीं उठानी है, कभी किसी के सामने अपने दुख का इजहार नहीं करना है, किसी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिसकी वजह से कल को कोई आपकी तरफ बेचारगी से आए। बाकी अल्लाह ताला अपना रहम रखे और हम सबको सब्र अता करे कि जो इसकी तरफ से हमारी जिंदगी में आता है वो इलावा रहमत में लिपटी हुई और कोई चीज नहीं होती, चाहे वो मुश्किल वक्त ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हमेशा अपने साथ एक आफियत और एक खूबसूरती लेके आ रहा था। ये मेरी माँ के अल्फाज हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और खुदा करे कि मैं इस सबक का जर्रा भी जो है वो मुझे अता हो जाए। गजल सिंगर मोहम्मद अली, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, इतनी शाइस्ता गायकी, स्वीट आवाज़ जो कानों में रस घोलने वाली, आज वो हमसे जुदा हो गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। गुज़श्ता कुछ अरसे से वो कैंसर जैसे मूजी मरज से बड़ी हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला कर रही थीं, लेकिन सफ़र आखिरत तो तय है। हर जी रूह ने अपने खालिक के पास जाना है। 20 और 21 अगस्त 2022 की दरमियानी शब वो अपने शौहर शहरियार जैदी और बेटों नादे अली और जाफर जैदी को सोगवारान में छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिली। सैकड़ों मद्दाहों की मौजूदगी में मस्जिद व इमाम बारगाह यसरब डिफेंस कराची में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और डिफेंस फेज 8 कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। नैयरा नूर इस दुनिया से रुखसत ले गई, लेकिन आसमान मौसीकी का ये नैयर अपनी आवाज की सूरत में हमेशा जगमगाता रहेगा। अभी आपने बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर के हवाले से ताज़ियती प्रोग्राम सुना। तहरीर मंजूर कामरान, रावियो प्रोड्यूसर एहतसामुल हक, पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।